Guys, is my screen visible? If an Yes. Yes. Okay, so hi guys, welcome to Learn Mojos. Yes. Welcome to Learn Mojos. First of all, let me put some ground rules. If anyone has a query or anything, please put it on the chat box or ask at the end of the session. There will be a 20 to 15 to 20 minutes break where I will address all the queries. Otherwise, it will be a very cumbersome situation for me to handle the queries in between my presentation, right? So let's start. So Learn Mojos is presenting this course of beginners for stock market. So this is our first session, and in this I will be explaining you what is investing and how you can make money, means the art of making money. As you can see the title, the power of investing, the art of making money. So if you get the sense that if you water plant, the plant grows. Similarly, you have to invest your money to grow your money. Otherwise you will be in a very bad situation after your retirement, I guess. uh, yeah, so this is me. I am Kamlesh Porwa. I will be your instructor for this course. I am a engineer by background and I did my textile engineering from this particular institute, the Technological Institute of Textile Sciences. It's it's one of the premier institute of India and was established in 1942. It was before independence, guys. So I have a work ex of around 3 years working as a ERP consultant in one of the famous and reputed ERP company. If you know ERP, then it's fine. If you don't know, you can put it on the chat box. I will explain what ERP as well. So I worked in multiple locations, on site, off site, in China, Germany, Turkey, Bangladesh, and I executed the projects, and I have a wholesome experience on that. And currently I am passionate about equity research. So during my PGDM, I took my major as finance, and from there I got the passion of equity, means to invest, how to invest and make money. So that is my passion. So yeah, these are the points which will be discussed today. Uh, why you should invest, where should you invest, introduction to capital market, which is the main agenda. Trading cycle, there is a cycle which is followed in Indian market. It is peculiar and mostly it is different in different countries. And how to open a demat account, it is also very important, guys. I need to address this on the first session, because if you make demat account today itself, then uh, means if you apply today, so it will get done by tomorrow evening or day after tomorrow morning, and then we can invest directly. The things which are learning in theory, we will directly apply in the market. So yeah, so the major question comes, uh, why to invest, means why do you want to invest? See, your life goals, like I am you can say in mid 20s right now. I am approaching 30. So my life goals are pretty similar to these pictures you can see. I want to own an Audi car, I want money, I want bike, I want an world tour, I want to own a big house, I want vacation. So these kind of things you can't get from your regular salary, right? So there is a say that in Hindi I have heard in during my engineering, मज़े तो हम अपने घर वालों के पैसों से करते हैं, अपने पैसों से तो बस दाल रोटी मिलती है. तो ये सच है गाइस. मैंने काम करा है 3 साल, मुझे पता है महीने के एंड तक आते आते आपके सैलरी ख़त्म हो जाती है. तो यू नीड टू हैव एन ऑल्टरनेट इनकम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर शुड बी एन active income, there should be an passive income. Active income is the income which you are earning from your salary, and you need to invest that active income to generate a passive income. Means there is a quote which I have written at the end of the presentation, like if you can't generate a way when generate a way to make money while you are sleeping, then you have to work for your entire life. So that is true, guys. If you don't have a passive income, then you cannot be happy, or you cannot attain your 100% goals of your life. So the next thing is, again the question, why to invest. The answer again comes, the power of compounding.
According to Newton, compounding is the eighth wonder, guys. Eighth wonder. There are seven wonders, and compounding is the eighth wonder. I will show you how. This is a case scenario which I have taken to explain you the power of compounding. Imagine you have a salary of means you have done your MCom, you have done your post graduation, and now you are in a well settled company and all, and you are earning a handsome salary of 50,000 per month. So your CTC becomes 6 lakhs per month. Your income for your first year is 6 lakhs. Your expense is 30,000 per month. So your expense for the year becomes 3 lakh 60,000. So if you minus your expense from your income, you get a retained cash of 2 lakh 40,000 from your first year. And I have also assumed that you get a salary hike of 10%. This is a very you can say unrealistic scenario, but yes, I have assumed that you get a salary hike of 10% every year. So I have assumed that you will be working for 20 years, and every year you will get a hike of 10%. So if you see the retained earnings at the end, guys, this is around 1 crore 78 lakhs and 90,000. So if you don't invest your money, you keep your money at your home in form of cash, or anywhere where you are not getting a suitable in return on your money, then you will only grow your money to a very limited extent. And if you see, now if you invest your money, I have assumed that you are investing your money and you are getting a handsome return of 12% per annum. So assume that 6 lakh was your income, expense was your 3 lakh 60,000, you retained a earning of 2 lakh 40,000 in your first year, which you invested, and at the end of 20th year, means you have invested this money for 19 years, and at the end of 20th year you get an huge amount, 20 lakh 67,000 at a annual increment of 12%. So similarly, this second year's income, retained income, you invest for 18 years, this for 17 years, and you go on till the 20th year, and if you add all these invested income, and you will get a huge figure of 4 crore 26 lakh 95,000. So if you see, if you invest your money, and this is the minimum rate of return you can expect if you invest in any good instrument, so you can increase your savings by around 2.4 times. So this is the power of compounding, guys. So if you compound your income, if you compound your savings and invest in a very good instrument which gives you a consistent returns, then you can really grow your wealth. And if you know Warren Buffett, his secret for wealth is this compounding only. He bought Coca-Cola shares in 1972 and he bought Coca-Cola shares worth of $2 billion, and now that share is worth $88 billion, which is 98% of his wealth. So you can see, guys, the power of compounding. So every known investor has understood the compounding effect and used this effect to create the wealth. So now you know the importance of investing. So we will discuss where we can invest to get this kind of return, but yes, you should understand the compounding effect. So again the question comes, why to invest? Now if I am showing you this graph, this is Sensex graph monthly chart. If you see Sensex is an index, guys. I will explain in detail what is Sensex, and this is a monthly chart. Means if you see this is called a candle. I will explain this also, how this is created, what are the dynamics. But now you just see that I have created an arrow. If you look at this arrow, and this is a monthly chart, and you look at the timeline, I have taken from 2005 to 2020, this current timeline. So if you see the graph in a long term of 15 years, I can see the graph trend. If you see the trend of the graph, it is only upwards. In long term, the equity market, you say, or instrument which I will be talking about in this course is equity only. So I will talk about equity only. So equity market, specifically the capital market, this graph is always upwards. So in long term, if you have a purview of 5 years, 6 years, 8 years of investment,
then you can expect a handsome return, which you can see here. Yeah, there are few hiccups, like if you see in 2008 there was the crisis, real estate crisis. The Lehman Brothers filed bankruptcy in one day, so that created this hiccup. The market crashed like anything, but again it bounced back. Similarly, you can see again a big crash here due to COVID, but again it is bouncing back. So it will always bounce back, guys, because market is it's inherent nature to bounce back after a fall. So you can see after every fall it bounces back twice height. It has a two times height after every fall. So this gives us an opportunity to invest, because when the market crash we get a good shares at a very discounted prices. So those who bought the shares at this point have enjoyed this movement. They have bought it at a lower level and sold it at a higher level, so they have generated a wealth from nothing, simple, from air. You can call it हवा में पैसे बन गए. Means they didn't do anything, they just followed the chart, they bought it at the lower levels and sold it at a higher level. So this is the magic, guys. This is, you can say, magic. Stock market is like this only. If you can anticipate what the market thinks, and if you know the behavior, how your fellow investors will behave at a particular situation, you are superstar, guys, in the stock market. So currently we have a very good opportunity to invest, because again there is a very big drop in due to COVID. So everyone knows that due to COVID market crashed, and those who invested at this point, they are now reaping their investment, and they are enjoying like anything. I know many of my friends had invested 2 lakhs, 3 lakhs, and now their money has doubled and tripled in mere 2 to 3 months. So see the magic of investing, guys. So again, this is the third and final slide where I will again answer the same question, why you should invest. So there is a concept in finance called time value of money. This is actually the base of finance, you can say. If you understand this concept, then you can understand finance very easily, guys. So there is a question, what you will choose, 10,000 rupees today or 10,000 rupees after 1 year. Guys, if you can answer this question correctly, you have a basic understanding of time value of money. Anyone who wants to reply to this question can unmute and answer. Today. I will choose 10,000 today. Okay, so why you will choose 10,000 today? Do you have any logic behind 10,000 today. Because later on, the Today. price value, the price value, like the value of money after 1 year would decrease. How? Why it will decrease? That is the question. मतलब जैसे कोई चीज है, कोई सामान है जो आज 10,000 की है, वो बाद में जाके 15,000 की हो जाएगी, तो वो क्यों चेंज हो हो जाती जाता है? है, क्यों हो इन्फ्लेशन जाती आ है? जाता है. हाँ, वही GDP? तो. टाइम इन्फ्लेशन, मतलब हाँ, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन. एक होता है मेजर कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन का. इन्फ्लेशन डिफाइन होता है, आपके दो इंडेक्स होते हैं, CPI और WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स. उससे ना आपकी इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है. तो अगर इन्फ्लेशन फ़िलहाल इंडिया में 6% के आसपास चल रहा है, अगर आपने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे अगर 6% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी और आप अच्छी तरह अपना क्या कहते हैं लाइफस्टाइल क्या कहते हैं लीड कर सकते हो. बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 6% से नीचे रिटर्न दे रही है या रिटर्न ही नहीं दे रही है, आपने कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा, तो हर साल आपकी जो पैसे की वैल्यू है ना वो 6% डिक्रीज़ होती जाएगी. ये है कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाली है कि क्या कहते हैं, जितनी जल्दी आप चालू करोगे ना इन्वेस्ट करना, उतनी जल्दी आप जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया था उसका बेनिफिट ले सकते हो. क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट का ना जो असली पावर होता है वो क्या कहते हैं लेटर स्टेजेस पे आता है. जैसे अभी आप 1 रुपये डालोगे तो अगले साल 1 रुपये का 1 रुपये 10 पैसे होगा, लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल बाद देखोगे तो वो डबल ट्रिपल 4 गुना होगा एक साल के बाद. तो वो होता है कंपाउंडिंग. मतलब आखिरी के ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और शुरुआती के ईयर्स में बहुत कम होता है. तो इस टाइप के ग्राफ को ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं. अगर आप इसको देखो, इस टाइप के ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं. एक होता है लीनियर ग्राफ, सीधा चल रहा है, मतलब
जैसे जितना टाइम बढ़ेगा उतना मनी बढ़ेगा, तो हम क्या कहते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये लॉगरिथमिक ग्राफ या आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जिसमें क्या कहते हैं लेटर स्टेजेस में ज़्यादा ग्रोथ आती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितनी जल्दी, मतलब ये देखो 25 साल की उम्र में जिसने इन्वेस्ट करना चालू करा था उसका ग्राफ सबसे ऊपर है। ये जो 35 साल की उम्र में चालू कर रहा है इसका ग्राफ नीचे इसलिए है क्योंकि 40 साल वाला ज़्यादा पैसे लगा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट्स एट 40 डबल सेविंग। तो अगर वो ज़्यादा पैसे लगा रहा है तो वो हो सकता है कि 35 साल वाले से आगे हो जाए, बट 25 साल वाले से आगे नहीं जा सकता कभी भी, क्योंकि उसने उससे क्या कहते हैं 15 साल पहले, सॉरी हाँ 15 साल पहले उसने इन्वेस्टिंग चालू करी है। तो 15 साल का जो बेनिफिट है वो ले चुका है, जो ये कभी नहीं ले सकता इन्वेस्टर 3 जो है। गाइस टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ आया? यस। ओके Yes. यस। तो ये एक्चुअली मैं बताऊं तो ये 85% फाइनेंस है। अगर ये समझ आ जाता है ना तो आपको म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं वो समझ आ जाएगा, इंश्योरेंस कैसे काम करता है वो समझ आ जाएगा, आपको क्या कहते हैं ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये भी समझ आ जाएगा। मतलब बेसिकली जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उसका बेस यहीं से चालू होता है। आपको क्या कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट का अगर आपको इंटरनल रिटर्न निकालना है तो उसे डिस्काउंट करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू में, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल होता है, कोई भी प्रमोटर उस प्रोजेक्ट को क्यों लेता है, उसमें उसको क्या फ़ायदे दिखते हैं, वो सब कुछ इसी से कैलकुलेट होता है गाइस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। फाइनेंस जिन्होंने ले रखा है या पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा इसका इम्पोर्टेंस, बाकी हमारे लिए इतना ही अभी इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी बातें और होंगी हम इस पर और डिटेल में जाएंगे। इसके बाद गाइज द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एसेट क्लासेस। अब हमने जान लिया है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पे हमें उस टाइप के रिटर्न्स मिल सकते हैं, 12%, 20%, 25% के रिटर्न्स मिल सकते हैं जो जहाँ वहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। तो हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग एसेट क्लासेस होते हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे स्टैंडर्ड एसेट क्लास होता है हमारा ये रियल एस्टेट। पुराने टाइम से मतलब हमारे मम्मी पापा जानते हैं कि अगर रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया तो मतलब करोड़पति हो आप अगले 10 साल के बाद। गुड़गांव में अगर किसी का घर है तो वो करोड़पति है, ये फैक्ट है गाइस। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बट 2008 के बाद बबल के बाद जो रियल एस्टेट बबल है वो टूटने के बाद थोड़ा सा रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लो हो गया। इंडस्ट्री अगर आप देखोगे सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई है। इस वजह से रियल एस्टेट मार्केट में आप उस टाइप की रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ रियल एस्टेट वो एवरग्रीन मार्केट है, क्योंकि देखो लैंड एक ऐसी कमोडिटी है जो फिक्स्ड है, उसकी सप्लाई फिक्स्ड है, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी किसी चीज़ की और अगर सप्लाई फिक्स्ड है तो डिमांड सप्लाई रूल कहता है कि उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए रियल एस्टेट एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा क्लासिक एग्जांपल है आपका गोल्ड। इसे हम प्रेशियस मेटल्स के एसेट क्लास में डालते हैं। प्रेशियस मेटल्स का एसेट क्लास में गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, जिंक आता है, एल्यूमिनियम आता है, ये सब कमोडिटीज़ हैं। प्रेशियस मेटल्स भी एक टाइप की कमोडिटी होती है, तो यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम ये हमारे ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, हमारे फादर, हमारी जो पहली जनरेशन है, पिछली वाली जनरेशन हमसे, वो लोग रियल एस्टेट और गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते थे। बट गोल्ड में इन्वेस्ट करने की एक वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप अगर फिज़िकल गोल्ड लेते हो तो उसको रखना, उसको एक लॉकर में रखोगे तो उसके लिए पैसा लगेगा, सालाना मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, चोरी का डर रहता है, अगर कुछ गोल्ड को हो जाए तो क्या कहते हैं उसकी वैल्यू घट जाती है। अगर आप गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाना चाहोगे तो रीमोल्डिंग, कास्टिंग, डिज़ाइनिंग, उसके पैसे अलग से लगते हैं। तो गोल्ड अगर आप और इसकी जगह अगर आप डिजिटली गोल्ड खरीदते हो, जैसे RBI सॉवरेन बॉन्ड्स निकालती है गोल्ड के, अभी निकले हुए हैं, अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो कर सकता है। तो वो अगर हम खरीदें तो उसके लिए हमें बस डिजिटली है, वो हमारे डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे, तो उसके लिए कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। तो वो एक फ़ायदा होता है। तो ये एक एसेट क्लास हो गया, गोल्ड एक एसेट क्लास हो गया प्रेशियस मेटल्स का। तीसरा एक एसेट क्लास होता है आपका बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट में क्या कहते हैं अलग अलग टाइप के सर्विसेज होते हैं वो अवेल कर लिए, और बैंक के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब हमने बेसिकली दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाता है, ये प्रोविडेंट फंड और EPF। अगर आपने किसी बैंक में पर्सनल प्रोविडेंट फंड खुला रखा है तो उसमें अगर आप पैसे डालते हो तो 15 साल तक से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद वो मतलब एक वो होता है एज लिमिट, उसके बाद आप क्या कहते हैं 7 साल या 5 साल के बाद निकाल सकते हो। लेकिन टेक्निकली रूल के हिसाब से 15 साल तक एक बार इसमें पैसा डाल दे तो नहीं निकाल सकते।
ईपीएफ भी एक बैंक का ही एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो। इसमें क्या होता है, जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम करते हो, अगर एम्प्लॉयर आपके सैलरी से 1,000 रुपये ईपीएफ के नाम के काटता है तो एम्प्लॉयर भी 1,000 रुपये अपनी तरफ से डालता है, तो आपको एंड ऑफ द डे डबल पैसे मिल रहे हैं, जितने आपसे कट रहे हैं उतने ही एम्प्लॉयर दे रहा है, तो डबल हो गए पैसे। तो ये सब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक और है, अब इसके बाद थोड़े से न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। वैसे तो ये न्यू नहीं है लेकिन कंपेरेटिवली मतलब नए हैं। डेट कहते हैं इसे। डेट में डिबेंचर्स आ जाते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कंपनीज होती हैं वो ना दो तरीके से पैसे उठा सकती हैं, या तो उधार लेके, कर्जा लेके, या तो अपने शेयर बेच के, जो इक्विटी बेचते हैं। तो अगर उधार से ले रहे हैं तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशू करेंगे। वो नॉर्मल पब्लिक, गवर्नमेंट या HNIs जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो खरीदते हैं, और वो पैसा ये कंपनीज़ को मिल जाता है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। और दूसरा होता है इक्विटी, जिसके बारे में मैं लास्ट में बोलूँगा क्योंकि यही हमारा मेजर टॉपिक है। मतलब एक और इसी डेट का ही एक और फॉर्म होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये तो हो गया कमर्शियल कंपनीज निकाल रही है, कमर्शियली वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट निकालती है अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो। सेम ही होता है, ये भी उधार ही है एक तरीके का, गवर्नमेंट उधार मांग रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है। जैसे मसाला बॉन्ड्स, किसी ने अगर सुना होगा तो, वो मसाला बॉन्ड्स निकाला था अरुण जेटली ने अपने टाइम पे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। यूएस में जितने भी इंडियंस रहते थे ना, उनको बोला था आप खरीदो और इंडियन मार्केट में आप पैसा लगाओ, तो वो मसाला बॉन्ड के थ्रू पैसा आया था, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। लेकिन वो एक फॉर्म ऑफ डेट ही है, बट मैंने उसे इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये कमर्शियली होता है, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है। तो कमर्शियली में क्या है, डिफ़ॉल्ट का चांस होता है। अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया, मतलब बैंकरप्सी आ गई कंपनी की, तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, वो आपके पैसे वापस नहीं कर पाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ना ऑब्लिगेटेड होता है। वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कभी कर ही नहीं सकता, मतलब आज तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करा। अगर ये डिफ़ॉल्ट कर देगा तो मतलब कोई बात ही नहीं है, फिर तो ख़त्म हो गया सब, ये मान लेना। तो गवर्नमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। उसके बाद एक लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है गाइस, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मल्टी बैगर है गाइस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि मार्केट डायनेमिक्स क्या है, क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही रिसेंटली आया है। सबने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। एक बिटकॉइन फ़िलहाल अभी 6.5 लाख और 7.5 लाख के बीच में हॉवर कर रहा है, उसका इंडियन रुपीज़ में बोल रहा हूँ गाइस। सो बिटकॉइन की वैल्यू इतनी है, मतलब हम एक बिटकॉइन तो खरीद ही नहीं सकते, मान लो, मतलब 7 लाख तो मतलब टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी किसी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की, तो एक बिटकॉइन खरीद पाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। सिमिलरली और भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो बहुत फेमस हो रही हैं, लेकिन ये कंपेरेटिवली बहुत सस्ते हैं बिटकॉइन से। इथेरियम है, थेटा है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 सबसे ज़्यादा फेमस है, बिटकॉइन, इथेरियम, थेटा। ये क्रिप्टो करेंसी में आ जाती है, यहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत क्या कहते हैं, दूसरे तरीके होते हैं, वो करने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लास्ट में आते हैं गाइस इक्विटी में। इक्विटी जो है दूसरा तरीका है पैसा उठाने का कंपनीज़ के लिए। तो पहला तरीका हो गया डेट, दूसरा तरीका हो गया इक्विटी, और सबसे अच्छा तरीका मानते हैं कंपनीज़, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट क्या कहते हैं, एक टाइम के बाद ना कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो इसलिए कंपनी ज़्यादातर इक्विटी प्रेफर करती है, वो अपना शेयर दे देती है, ना कि डेट उठाती है। तो इक्विटी में आपका शेयर मार्केट आ जाता है, डेरिवेटिव्स, इसके बारे में बताऊंगा अभी आगे जाके। तो ये पूरा शेयर मार्केट और डेरिवेटिव्स वाला सेक्शन इक्विटी मार्केट में है। और यहाँ पे भी हम मतलब मैं जब भी इन्वेस्ट करता हूँ इक्विटी में, मेरा मिनिमम रिटर्न होता है 20%। उससे पहले मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 20% होता है। अगर मेरा 5% मेरा स्टॉप लॉस है तो 20% मेरा क्या कहते हैं रिवॉर्ड होना चाहिए। तो जब तक मेरा 20% का रिवॉर्ड नहीं होता जिस कंपनी में, मैं इन्वेस्ट नहीं करता, और जब तक वो अकम्प्लिश नहीं होता मैं उस ट्रेड से निकलता भी नहीं हूँ। तो 20% बहुत डिसेंट वो है, एक इन रिटर्न है। तो गाइस 20% अगर आप ले पाओ तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आपका पोर्टफोलियो 20% बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइस। सो गाइस मोटा मोटा ये 7 या 8 जो है एसेट क्लासेस होते हैं, ज़्यादा यही एसेट क्लासेस की क्लासिफिकेशन होती है। और भी होते हैं लेकिन वो इन्हीं के ही सब पार्ट्स होंगे अगर आएंगे भी तो। ओके गाइस, किसी को कोई डाउट है इस स्लाइड में? ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
गाइस अब इक्विटी मार्केट के बारे में बात करते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है पहले तो यही बता दो। मतलब जैसे जहाँ पे सब्जी बिकती है उसे सब्जी का मार्केट कहते हैं, सब्जी मंडी। वैसे ही जहाँ पे स्टॉक्स बिकते हैं वो सब स्टॉक्स का मार्केट है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में इट इज़ कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो फर्स्ट स्टॉक exchange was established in Amsterdam in 1602, so around 400 years back. After that, the second stock exchange was established after 200 years in New York Stock Exchange. It is one of the biggest stock exchange of the world currently. And after that, the third stock exchange of the world was the Bombay Stock Exchange. It was in 1875, and it is India's biggest. It is India's oldest, Asia's oldest, I must say, Asia's oldest stock exchange. After that, the second stock exchange of India, which is very famous, that is National Stock Exchange or NSE. This is BSE, this is NSE. It was established around 1992, and around that time only the SEBI was formed. SEBI is Securities Exchange Board of India. Guys, गवर्नमेंट में हर एक डिपार्टमेंट का ना एक क्या कहते हैं मॉनिटरिंग रेगुलेटरी बॉडी होता है। तो स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो सेबी है। सेबी पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी के अंडर ही ये स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, सेबी के अंडर ही ये जितने भी लिस्टेड कंपनीज है वो आती है, सेबी के अंडर ही जितने भी डिपॉजिटरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, वो सब सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर सेबी ने रजिस्टर कर दिया तो मतलब एक लीगल एंटिटी है ये, तो हम भरोसा कर सकते हैं उस पर। तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। 1992 के समय ये इसलिए, और ये सेबी क्यों बनाया गया था, पहले नहीं था ये, 1875 में नहीं बनाया, लेकिन 1992 में सेबी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम कहते हैं उसे। तो हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा अपने टाइम का बहुत बड़ा स्कैम करा था। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय वो भी हुआ था, क्या कहते हैं 1992 के एंड और 1993 के स्टार्टिंग में LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन चीज़ें भी हुई थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि बाहर की कंपनीज भी आएंगी इंडिया में, इंडिया की कंपनीज बाहर जाएंगी, कोलैबोरेशन होगा, बाहर का पैसा इंडिया आएगा, इंडिया का पैसा भी बाहर जाएगा। तो एक रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो इन सबको मॉनिटर कर सके। तो उस समय इस वजह से सेबी बनाई गई थी, इन सबको मॉनिटर करने के लिए। गाइज ये दोनों जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो क्या कहते हैं फेमस हैं इंडिया की। दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बड़ी, सबसे बड़ी, लेकिन और भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, या राजस्थान में भी है शायद जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, जितना मुझे पता है, यूपी में भी है, कुछ क्या कहते हैं साउथ में भी है, कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। लेकिन वहाँ पे ना ज़्यादातर कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं, या तो ऐसी कंपनीज लिस्टेड हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं, या तो कोई करना ही नहीं चाहता, इनका छोटी मोटी कंपनी होती हैं। मेजर कंपनी जितनी भी है ना, जो फॉर्चून कंपनीज हैं इंडियन मार्केट की, वो NSE या BSE में लिस्टेड है। ओके गाइज, इसके बाद है ट्रेड पार्टिसिपेंट। ये इंपॉर्टेंट है जानना। मेजरली 4 होते हैं, 5वां एक और है, वो होता है इन्वेस्टर। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो इम्प्लाइड है। पहला होता है स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ना हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब जैसे सब्जी मंडी में हम जाके इंडिविजुअली खरीद लेते हैं ना सब्जी, वैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली जाके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो हमारी तरफ से, हमारे बिहाफ से कोई जाता है शेयर खरीदने, वो कौन होता है? वो ब्रोकर होता है। तो हमको क्या करना होता है, जो डीमैट अकाउंट जिसकी हम लास्ट में बात करेंगे, तो डीमैट अकाउंट का क्या है, हम ब्रोकर के पास खुलवाते हैं, फिर हम डीमैट अकाउंट में अपना ऑर्डर डालते हैं, तो ब्रोकर को पता लग जाता है कि हमें ये शेयर खरीदना है, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके हमारी तरफ से वो शेयर उस प्राइस पे खरीद लेता है जिस प्राइस पे हम बोलते हैं। इस बीच में दो पार्टिसिपेंट और आते हैं, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस। इनका काम क्या होता है? डिपॉजिटरी का काम होता है कि जिससे आपने ख़रीदा है शेयर, उससे उठा के वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डाल दे। और क्या कहते हैं क्लियरिंग हाउस का क्या काम होता है? आपसे पैसे लेके, क्या कहते हैं जिससे आपने शेयर खरीदा ना, उसके डीमैट अकाउंट में पैसे पहुंचे। तो शेयर का आदान प्रदान डिपॉजिटरी करता है और पैसों का आदान प्रदान क्लियरिंग हाउस करता है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये नोट का सिंबल लगा दिया ताकि क्लियर हो जाए कि क्लियरिंग हाउस पैसों की सेटलमेंट करता है और ये शेयर्स की सेटलमेंट करता है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंडर ही होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा गाइस। ट्रेड पार्टिसिपेंट में देखो, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर क्या कहते हैं, सबसे पहले अपने ब्रोकर के पास जाएगा और बोलेगा डीमैट अकाउंट में कि मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है 2000 रुपये में। तो फिर ये वाला जो ऑर्डर है वो स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाएगा। वो स्टॉक एक्सचेंज में
इसके पास क्या होता है, एक ऑटोमेटेड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है, उससे वो ढूंढता है पूरे मार्केट में, कोई सेलर ढूंढता है जो सेम रेट पे सेम क्वांटिटी बेचना चाहता हो, उसको एक बार वो ढूंढ लेता है, फिर वो क्या कहते हैं, वो हमारे डीमैट अकाउंट में दिखा देता है कि शेयर बिक गया। लेकिन एक्चुअली ना क्या कहते हैं, T+2 डे का कॉन्सेप्ट होता है गाइस। हमारे होल्डिंग में हमारे जो डीमैट अकाउंट में दिख तो जाता है वो, लेकिन वो असली में हमारे डीमैट अकाउंट में आता 2 दिन बाद है। हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ हमारा शेयर खरीदा गया है और हमारे पैसे निकल जाते हैं उसी टाइम, लेकिन 2 दिन बाद हमारे होल्डिंग में दिखाता है, और वो करता है ये डिपॉजिटरी क्या कहते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर, ये क्या कहते हैं टाइम फिक्स्ड है गाइस, 2 दिन में आ जाता है, चाहे कुछ भी हो 2 दिन के अंदर आ जाएगा। अगर कोई छुट्टी आ जाती है बीच में तो अगले नेक्स्ट डे हो जाता है वो, लेकिन वो छुट्टी फिर मानी नहीं जाती, तो इसलिए 2 दिन फिर से काउंट हो जाता है। अगर आपने फ्राइडे को ख़रीदा तो मंडे को आएगा, सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा। अगर आपने मंडे को ख़रीदा तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक आ जाएगा, क्योंकि वो दूसरा दिन ख़त्म हो जाता है उस समय पर। तो ये पूरा एक साइकिल होता है। T+2 में क्या होता है, अगर आपने मंडे को ख़रीदा कोई शेयर, वो आपके पोजीशन में दिखा देगा, मतलब आपके करंट अकाउंट में दिखा देगा, आपके मतलब होल्डिंग में नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर मंडे से जब ट्यूसडे में जाएगा तो आपके होल्डिंग में दिखाएगा, लेकिन आपके शेयर के ऊपर ना T+1 लिखा होगा। इसका मतलब है अभी भी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। और क्या कहते हैं, ट्यूसडे के बाद जब वेडनेसडे होगा, जब T+2 डे होगा, वेडनेसडे को आपका शेयर आपकी होल्डिंग में दिखाएगा, और ये चीज़ जो लिखी होगी आपके शेयर पे वो हट जाएगी। आप जब पहली बार ट्रेड करोगे ना, आप इस चीज़ को नोटिस करना कि पहले बार जब आप ख़रीदते हो तो पोजीशंस में आता है, फिर एक दिन बाद वो हमारे होल्डिंग में दिखाता है, लेकिन शेयर के ऊपर ना ये लिखा होता है T+1, और उस दिन के बाद जब T+2 डे हो जाता है तो ये चीज़ हट जाती है लिखी हुई, और वो हमारे होल्डिंग में आ जाता है। तो इस चीज़ को ट्रेडिंग साइकिल कहते हैं गाइस। T+2 डे का कॉन्सेप्ट इंडिया में है, यूएसए में अलग है, यूके में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, न्यूजीलैंड में अलग है। इंडिया में T+2 डे है, ये क्या कहते हैं सेबी से डिफाइंड रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या कहते हैं पत्थर की लकीर है, ऐसा मान लो। सेबी जो भी बोलता है वो मानना पड़ता है। आज रिसेंटली नए रूल्स आए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे गाइस एंड में, अगर टाइम बचा तो। नेक्स्ट है वही क्या कहते हैं, सेम स्लाइड रिपीट हो गई शायद। ये सेबी जो है ये मॉनिटरिंग करती है क्या कहते हैं पूरे स्टॉक मार्केट की, और पूरे स्टॉक मार्केट का सबसे 2 स्टॉक मार्केट क्या है, NSE BSE। यहाँ पे एक नई चीज़ और इंट्रोड्यूस हो रही है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ना एक तरीके का इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या होता है वो हमें समझना चाहिए। मतलब अगर हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में करीब BSE में तो 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं, और NSE में करीब 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो हम एक साथ ना 5000 कंपनीज और 2000 कंपनीज को मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं कि आज मार्केट कैसा है, तो तुम 5000 कंपनीज को देखना पड़ेगा, फिर तुम बता पाओगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है। लेकिन इसमें तो पूरा दिन या पूरा महीना लग जाएगा, इतने में तो टाइम निकल जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। तो इस वजह से क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपनी इंडेक्स बना रखी है। BSE ने टॉप की 30 कंपनियाँ ले रखी हैं, और उससे कैलकुलेट कर, वो टॉप की 30 कंपनीज एक तरीके से ना सैम्पल होता है पूरे पॉपुलेशन का, और वो सैम्पल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन 30 कंपनियों के प्राइजेस ऊपर नीचे गए तो हम कहेंगे कि BSE का जो मार्केट है आज नीचे ऊपर नीचे हुआ है। सिमिलरली सेम टू सेम निफ्टी 50 में टॉप की 50 कंपनीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं NSE के मार्क को। अब अगर क्या कहते हैं ज़्यादातर केस में क्या होगा, मैंने लिस्ट भी बना रखी है, ये जो 30 कंपनीज है ना, ये 30 की 30 इन 50 में इंक्लूडेड है, इसमें प्लस 20 और ऐड कर दी इन्होंने, बस यही डिफरेंस है। इन्होंने 30 कंपनियों के ऊपर पूरा मार्केट को एनालाइज करा है, इन्होंने 50 कंपनी को पूरा मार्केट एनालाइज करा है। तो इनका जो सैंपल है बड़ा है, तो इनका सैंपल ना ज़्यादा इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादा क्या कहते हैं जो GDP की मूवमेंट्स है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये जो है ये जो है ये भी करता है, लेकिन इतना रिफाइन नहीं है जितना ये है, क्योंकि ज़्यादातर लोग NSE को ज़्यादा प्रेफर करते हैं सेंसेक्स से, मतलब निफ्टी 50 को ज़्यादा देखते हैं। मतलब अगर कोई बोलेगा ना कि मार्केट रिटर्न क्या दे रहा है, तो लोग निफ्टी 50 के रिटर्न्स की बात करेंगे, ना कि सेंसेक्स की रिटर्न की। 90% टाइम ये होता है गाइस, लेकिन ये खुद की परसेप्शन है, ये बायस है खुद का कि मुझे सेंसेक्स में ख़रीदना है या निफ्टी में ख़रीदना है। ब्रोकर आपको दोनों ऑप्शन देता है कि आप सेंसेक्स में भी खरीद सकते हो, निफ्टी से भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ये देखो मैंने ना लिस्ट बना रखी है NSE की, ये टॉप की 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में इंक्लूडेड हैं। सिमिलरली BSE में जो सेंसेक्स है उसकी जो 30 कंपनीज हैं ये भी इंक्लूडेड है। और आप इसमें देख सकते हो
कि ये जो 30 कंपनीज हैं, ये 30 के 30 नाम इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आप देख सकते हो जो कंपनी आपको समझ नहीं आ रही, मतलब 50 की 50 कंपनियों के नाम आपने कभी ना कभी यूज़ करा होगा, इनके प्रोडक्ट्स देखे होंगे, आपके घर में अभी भी होंगे। आईटीसी बहुत फेमस है, गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट बनाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हर घर के अंदर है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, हर दूसरा प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। ब्रिटानिया के बिस्किट्स हर घर में पाए जाएंगे। एचडीएफसी बैंक में अकाउंट, या कोटक में अकाउंट, या एक्सेस में सबका अकाउंट होगा। पावर ग्रिड क्या कहते हैं, ये पावर ट्रांसमिशन करता है, ये क्या कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है पावर ट्रांसमिशन के लिए। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये क्या कहते हैं, ऑयल और गैस के सेक्टर में है। रिलायंस भी अभी इसी सेक्टर में है, लेकिन रिलायंस धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कंपनी बन रही है जियो की वजह से, तो उसकी वैल्यूएशन अलग तरीके से होती है, इसकी ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो एनएससी और बीएससी ने क्या कर रखा है, हर एक सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर हैं इंडिया में, मैं दिखाऊंगा कितने सेक्टर हैं, मैंने वो वेब पेज बना रखा है। बट वो सेक्टर्स क्या कहते हैं, उन सेक्टर्स की जो टॉप कंपनीज है ना, उन टॉप कंपनीज़ को इसमें क्या कहते हैं ले रखा है। जैसे अगर आप आईटी की बात करोगे तो टीसीएस है, फिर क्या कहते हैं टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, ठीक है। अगर आप टेलीकॉम की बात करोगे तो जियो, रिलायंस आ गया, वो भारतीय एयरटेल आ गया। अगर आप वो क्या कहते हैं कंज्यूमर गुड्स की बात करोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, हीरो मोटर कॉर्प है। फार्मा की बात करोगे तो डॉक्टर रेड्डी। ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे तो मारुति है, हीरो मोटर कॉर्प फिर से है, टाटा मोटर्स है। फिर अगर आप टेक्सटाइल की बात करोगे तो ग्रासिम है। सीमेंट की बात करोगे तो अल्ट्रा सीमेंट है। पेंट्स, ये भी कंज्यूमर गुड्स में आया था। तो फाइनेंस का भी है एचडीएफसी। तो हर सेक्टर की कंपनीज है, इसमें भी हैं। तो क्या कहते हैं टॉप की कंपनी दे रखी है हर सेक्टर की, और उनको फिर मार्केट रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये लोग मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, जैसे निफ्टी 50 का है ये, मैंने सेंसेक्स का नहीं दिखाया, सेंसेक्स का भी सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। निफ्टी 50 ने अगर 100% निफ्टी 50 है तो उसमें से 33% कंपनीज है ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज की हैं, 16% कंपनीज ऑयल एंड गैस की हैं, 16% ही आईटी की हैं, कंज्यूमर गुड्स 12% है, ऑटोमोबाइल 5% है, टेलीकॉम 3% है। इसके बाद ये 2% तक ठीक है मेटल, उसके बाद नेग्लेजिबल है पावर, फिर फर्टिलाइज़र सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये नेग्लेजिबल वेटेज रखते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर फाइनेंस वाली जो कंपनीज है ना उनकी प्राइस ऊपर नीचे जाएगी तो निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर नीचे जाएगी और उसी हिसाब से मार्केट जाएगा। अगर मान लो बैंक वाले शेयर्स की प्राइसेस नीचे गिर रही है तो निफ्टी भी गिरेगी, निफ्टी 50 भी, क्योंकि 33% वेटेज है। फिलहाल क्या कहते हैं, ये जो आईटी में ना 14% जो है रिलायंस ही ले रहा है। तो इसमें आईटी में 14% रिलायंस ले रहा है, 9% अकेला एचडीएफसी ले रहा है। मतलब अगर रिलायंस ही गिरा या उठा तो निफ्टी गिरेगा या उठेगा। तो अभी फ़िलहाल रिसेंटली जब एजीएम हुआ था और रिलायंस ने बड़ी अनाउंसमेंट करी थी, तो उस समय रिलायंस के प्राइजेस 2200-2300 तक चले गए थे और उसकी वजह से निफ्टी भी ऊपर गया था, अकेले इस रिलायंस के दम पे। बाकी सारी कंपनीज नेगेटिव में थी। तो ये होता है, मतलब जिसको ज़्यादा वेटेज देते हैं ना उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन भी होती है, मतलब कैलकुलेशन में उसका वेटेज ज़्यादा होता है। अब इसके बाद अलग ये वो सेंसेक्स और निफ्टी तो ब्रॉड इंडेक्स हो जाते हैं, मार्केट इंडेक्स। लेकिन उसके बाद ना और भी इंडेक्स होते हैं, जैसे सेक्टोरल इंडेक्स हो गया, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसी थीमेटिक इंडेक्सेस भी होते हैं, स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस भी होते हैं। हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम यहीं तक ही रहेंगे। सेक्टोरल इंडेक्सेस तक भी अगर समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद ये एक ओवरव्यू है मार्केट क्लासिफिकेशन का। स्टॉक मार्केट 2 मार्केट में डिवाइड होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता है अगर मैं रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता हूँ और अंबानी से शेयर खरीदता हूँ ना, क्योंकि अंबानी मालिक है, प्रमोटर है, तो मैं प्राइमरी मार्केट बोलूँगा कि मैंने प्राइमरी मार्केट से ख़रीदा है। ये कब होता है, अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर लिस्ट करती है अपनी शेयर मार्केट में, तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि हम प्रमोटर से खरीद रहे हैं। लेकिन अगर मैं रिलायंस के शेयर किसी और से खरीदता हूँ, मान लो मैं आदेश से शेयर खरीदता हूँ, तो वो सेकेंडरी मार्केट में क्लासीफाई होता है। 95% टाइम हम इसी मार्केट में डील करेंगे। प्राइमरी मार्केट में तो कभी कभार डील करेंगे जब कोई आईपीओ लिस्ट होता है, या कोई एफपीओ लिस्ट होता है, या कोई राइट्स इशू अनाउंस होता है कंपनी की तरफ से, जब प्राइमरी मार्केट में होगा, वरना हम सेकेंडरी मार्केट में डील करेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट फिर से 2 में डिवाइड होता है,
स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। स्पॉट मार्केट वही होता है कि जैसे मैंने आज ख़रीद लिया और मैंने होल्ड में रख लिया, मैंने कैश दिया और ख़रीद लिया, ये होता है स्पॉट मार्केट। शेयर्स की डिलीवरी ले ली अपने डीमैट अकाउंट में, ये हो गया स्पॉट मार्केट। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना बोलते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे पता है रिलायंस के शेयर बढ़ेंगे, तो मैंने किसी के साथ शर्त लगा ली, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मैं बोलूँगा कि रिलायंस के प्राइस बढ़ेंगे और वो बोलेगा कि रिलायंस के प्राइस घटेंगे, जब भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक फॉर बोलेगा एक अगेंस्ट बोलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो ना अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है। तो अगर मैंने बोला कि रिलायंस के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, तो रिलायंस के शेयर के प्राइस अगर बढ़े तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में जीत जाऊंगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके हिसाब से मुझे पैसे मिल जाएंगे, और अगर मैं हार गया तो दूसरा वाला बंदा जीत जाएगा। तो डेरिवेटिव एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें जो होता है डेरिवेटिव मतलब ये डेरिवेट कर रहा है अपनी वैल्यू को किसी और एसेट से। वो हो सकता है इक्विटी भी हो, वो हो सकता है कमोडिटी भी हो, वो हो सकता है कुछ और भी हो। मतलब आपने किसी पे भी शर्त लगा ली, वेदर कैसा है आज का, मतलब बारिश होगी कि नहीं होगी, इस पर भी अगर आप शर्त लगाते हो और कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो तो वो भी एक डेरिवेटिव मार्केट में क्लासीफाई हो जाएगा। तो डेरिवेटिव बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसमें मैं गाइस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये हमारे ये कोर्स के परव्यू के बाहर है, ये बिल्कुल ही एडवांस लेवल की बातें हैं। बट मोटा मोटा ये होता है कि ऑप्शंस में क्या होता है, आप अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा कोई नहीं होता। फ्यूचर्स अगर एक बार हो जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो फ्यूचर्स वाले केस में, तो आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है। अगर आप लॉस में हो तो भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट में हो तो करोगे ही आप, तो कोई उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ना तीनों चीज़, मतलब ये देखो डेरिवेटिव किसी भी चीज़ से हो सकती है, मतलब स्टॉक भी हो सकता है इसके अंदर, इंडेक्स भी हो सकता है इसके अंदर, करेंसी भी हो सकता है इसके अंदर। करेंसी एक बिल्कुल अलग फील्ड हो जाता है। अगर किसी ने फॉरेक्स मार्केट के बारे में सुना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इक्विटी मार्केट इसका मेरे हिसाब से 10% या 15% ही है। फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब जितना एक दिन में फॉरेक्स मार्केट में ट्रांजैक्शन होता है ना, उतना पूरे महीने में होता है इक्विटी मार्केट में। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, वर्ल्ड की, तो इतना बड़ा है, मतलब 30 गुना बड़ा है। अगर दिनों के हिसाब से देखेंगे तो 30 गुना बड़ा है। इसके बाद इसके बाद यही है कि अब मैंने इतनी सारी बातें बोल तो दी, लेकिन अब हमें रेगुलर बेसिस पे ना कुछ चीज़ें करनी होगी। मैंने लिख रखा है डेली चोज यू नीड टू डू रिलीजियसली टू हैव एन एज। अपडेट रहने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी रीडिंग की। रीडिंग का मतलब बुक्स नॉवेल्स नहीं, रीडिंग का मतलब अगर हमें चाहिए कि रीड हम करें तो मैंने यहाँ पे ये मैं ना भेज दूँगा, ये कुछ वेबसाइट्स मैंने निकाल के रखी हैं। ये रही, जैसे इन्वेस्ट इंडिया, ट्रेडिंग व्यू, टिकर फिनोलॉजी, इन सब में ना हमें क्या मिलता है, ये वारसिटी बहुत अच्छा है, ये मैंने खोल भी रखा है। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देखो वारसिटी में ना मॉड्यूल्स हैं अलग अलग, ये हम पढ़ सकते हैं। प्लस मैंने जो वो कोर्स में डाले हुए हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी इन्हीं से ही रिलेटेड ही हैं सब, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये और भी ज़्यादा प्रोफेशनली लिखे हुए हैं ये लोग, मतलब ज़ीरोधा जो है ये इसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आप पढ़ो, यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिक जो होता है बेसिक। तो हमें ज़्यादातर एनालिस्ट रिपोर्ट पढ़नी होती है, क्या कहते हैं, सेक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पे एक वेबसाइट खोली हुई है मैंने, ये ना investindia.gov है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे देखो सेक्टर्स इन इंडिया का लिस्ट बना रखा है। टोटल 29 सेक्टर्स है गाइस, 29 सेक्टर्स इंडिया में जो लिस्टेड हैं। हॉस्पिटैलिटी है, टेक्सटाइल, थर्मल, टेलीकॉम, रोड, रिन्यूएबल एनर्जी, रिटेल। सबसे पहले हमें ना जो भी एनालिस्ट होता है वो ना किसी सेक्टर में मास्टरी हासिल करता है। तो सबसे पहले तुम्हें इन सब सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, ओवरव्यू। जैसे देखो सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। जैसे अगर मैं ऑटो कंपोनेंट्स की बात करूँ, ये ऑटो एंसिलरीज का पार्ट होता है। ऑटो कंपोनेंट्स मतलब जैसे टायर हो गए, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, बॉडी, ऑटो के बॉडी पार्ट्स, और यहाँ तक कि नट बोल्ट, ये भी ऑटो कंपोनेंट्स में आएंगे। तो इंडिया जो है 2.3% जो इंडिया की जीडीपी है वो ऑटो कंपोनेंट से आती है। करीब 50 लाख बंदे एम्प्लॉयड हैं ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में, और ये 13% से ग्रो करता है हर साल। पिछले 6 साल से 13% से ग्रो करता है। तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे इसी ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में। तो हमें ना हर सेक्टर के बारे में पढ़ना है, और हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हर सेक्टर में होता क्या है।
उसके बाद हमें ये भी पता करना है कि इस सेक्टर के टॉप की कंपनीज कौन सी हैं और वो लिस्टेड कौन सी हैं उसमें से। एक बार हमें वो पता लग गया, फिर हम कंपनीज को एनालाइज करेंगे और फिर हमें पता लग जाएगा कि इस कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही प्रोसीजर सब जगह फॉलो होता है, बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड हाउस में या इन्वेस्टमेंट जो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो लोग यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। पहले वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्री देख ली, इंडस्ट्री में फिर कंपनी देख ली, फिर कंपनी को डिटेल एनालाइज कर दिया और फिर डिसाइड कर दिया कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो पेज है, इस पेज पे सब जाना और ये 29 सेक्टर्स के बारे में पढ़ना, तो तुम्हें ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इंडिया में कौन से सेक्टर्स हैं। और तुम ये रेगुलर न्यूज़ भी तुम लोग सब देखते ही होगे, तो तुम्हें पता होगा कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे अच्छी होगी। जैसे एविएशन में भी कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री अभी ठप पड़ी हुई है। सिमिलरली और भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये भी थोड़ी स्लो है अभी क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया है। हेल्थ केयर अभी बूम पे है कोविड की वजह से। ये लेदर बहुत स्लो है अभी क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आता है, सब घर पे बैठे हुए हैं, तो लेदर के जूते, लेदर के बैग कौन ही खरीदेगा। तो इस पे भी नहीं करूँगा मैं इन्वेस्ट। ऐसे ही मुझे ऊपर से मुझे पता है कौन सा सेक्टर काम कर रहा है अच्छा, फिर मैं उस सेक्टर के अंदर घुसूँगा, फिर उस सेक्टर के अंदर घुस के उसकी टॉप की कंपनीज निकालूंगा और फिर उन कंपनीज़ को एनालाइज़ करूँगा। उन कंपनीज़ को कैसे एनालाइज़ करना है वो फंडामेंटल एनालिसिस के क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करना है हमें। इंटरनेशनल मार्केट को क्यों फॉलो करना है, ये इसका रीज़न एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। ये देखो मैंने ना 2 चार्ट खोल रखे हैं, यूएस मार्केट और ये ब्लू वाला जो है ये यूएस मार्केट है, ये डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स DJI कहते हैं इसे, इस सिंबल को DJI। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है ना, वैसे यूएस में डाउ जोन्स है। वो DJI का मतलब है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो सारी इसमें। अब तुम ग्राफ को देखो बस, ये जो नीचे वाला है ये सेंसेक्स का ग्राफ है। तो ये जो अगर मैं निफ्टी का भी डालूंगा तो सेम, लगभग सेम ही होगा ऐसा ही। तो अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ डिप्स आई हैं डाउ जोन्स में, वहीं वहीं डिप्स आई हैं हमारे इंडियन मार्केट में भी। बस USA में एक दिन पहले आ जाती है और इंडिया में एक दिन बाद आती है। तो अगर यहाँ पे डिप आई है तो थोड़ा सा आगे जाके मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर अभी रात को ना USA का मार्केट चालू हो जाएगा और अगर आज रात को USA का मार्केट गिरा तो कल हम सुबह ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का मार्केट भी गिरेगा कल। तो लोग कल सेल करेंगे, लोग कल क्योंकि आज US का मार्केट गिरा है तो कल लोग सेल करेंगे। देखो कोविड में क्या हुआ है, कितना तगड़ा कोरिलेशन है, एक साथ ही नीचे गिरे हैं, एक साथ ही ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट ट्रैक करना है, स्पेसिफिकली US का मार्केट, क्योंकि US का मार्केट फॉलो करता है इंडियन मार्केट फॉलो करता है US के मार्केट को। तो हमें US के मार्केट को फॉलो करना है। तो हमें पता लग जाए, अगर मेरे को पता है आज डाउ जोन्स गिरा है तो कल इंडियन मार्केट भी गिरेगा। तो ये एंटिसिपेशन है। ज़्यादातर क्या सारे ही जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो बहुत ही बड़े तगड़े तरीके से इन्वेस्ट करते हैं वो लोग US मार्केट को भी फॉलो करते हैं। और डाउ जोन्स एक है, नैस्डैक है, नैस्डैक का फुल फॉर्म देख लेना गाइस। ये इस नैस्डैक में ना सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आती हैं, फेसबुक, ट्विटर, फिर आपका जो ये फैंग स्टॉक है, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ट्विटर और गूगल, ये फैंग, इसको फैंग कहते हैं। तो फैंग स्टॉक्स नैस्डैक के टॉप के 5-6 स्टॉक्स में आते हैं। तो नैस्डैक को भी फॉलो करना होता है। SPX 500 ये भी क्या कहते हैं एक इंडेक्स है। तो USA में 3 मेजर इंडेक्सेस होते हैं, एक नैस्डैक है, एक DJI है और SPX 500। यूरो INR ये तो क्या कहते हैं करेंसी मार्केट में चले गए, यूरो और INR के बीच में कंपेरिजन है। तो मेजरली मुझे यही दिखाना था कि इंडियन मार्केट और US मार्केट में बहुत तगड़ा कोरिलेशन है। अगर US मार्केट गिरेगा तो इंडिया भी गिरेगा, साथ में ही गिरेगा। हो सकता है 1-2 दिन बाद गिरे लेकिन गिरेगा ज़रूर, इफेक्ट आता है। तो जब US मार्केट तो अब क्वेश्चन आता है जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग क्या करते हैं, तो लोग जाते हैं सेफ हेवन में। सेफ हेवन क्या होता है, गोल्ड। तो देखो ये देखो लेटेस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। कोविड में जब निफ्टी गिरी थी ना, ये क्या कहते हैं फिर से वो है, ये क्या कहते हैं ये अपना सेंसेक्स है। जब सेंसेक्स गिरा था ना कोविड के समय, मार्च के समय, ये देखो गिरा था, उस समय गोल्ड के प्राइसेस बहुत शूट अप हो गए थे, ऊपर ही चले गए थे पूरे। तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में डालते थे क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है।
तो हमें ये ट्रेंड भी पता पता होना चाहिए कि अगर मुझे पता है तो गिरते हुए मार्केट में पैसे कैसे कमाएं। तो मुझे पता है मार्केट गिर रही है, या तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करूँगा। एक टेक्निक होती है गाइस शॉर्ट सेल की, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा क्या होता है। या तो मैं शॉर्ट सेल करूँगा, या तो मैं दूसरी जगह जाऊँगा जहाँ पे प्राइस बढ़ रहा होगा, और वो होता है गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम। ये जो कमोडिटीज़ होती हैं ना, उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं जब शेयर मार्केट गिरते हैं। इसके बाद क्या पॉइंट है, इसके बाद है लिस्ट ऑफ पॉडकास्ट। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं रोज़ सुबह उठ के ना, मुझे पता होता है कि मार्केट में क्या होगा। क्यों, कैसे पता होता है? ये एक पॉडकास्ट है, IVM करके एक ऐप है, ये सब डाउनलोड कर लेना गाइस। IVM ऐप, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और उस पर ही मिल जाएगा एप्पल स्टोर पे। ये IVM ऐप, इस IVM ऐप को जब डाउनलोड कर लोगे ना, उसमें एक पॉडकास्ट आता है ब्लूमबर्ग क्विंट ऑल यू नीड टू नो। ये सुबह 7:30 बजे आ जाता है। इसमें ना इंडियन मार्केट में किसको क्या ऑर्डर मिला है, कौन सी कंपनी में क्या हलचल हुई है, एक मेजर चीज़, कोई इवेंट मेजर होने वाला हो, कौन से स्टॉक्स हमें देखने चाहिए आज के दिन में, ये सब बताता है। और इससे ना बहुत सही हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन से सेक्टर को देखना चाहिए, कौन सी कंपनीज को देखना चाहिए। दूसरे पॉडकास्ट में इक्विटी सही है, ये मोतीलाल ओसवाल का है, ये भी मैं बहुत सुनता हूँ। ये भी बहुत इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ना इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इनकी बातें सुनते हैं ना, तो हमें और ज़्यादा समझ आता है। पैसा वैसा ये भी वही है कि क्या कहते हैं, ये शायद ये मुझे पता नहीं, ये भी किसी फंड हाउस मैनेजर का ही पॉडकास्ट है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं गाइस, ये मैं सुनता हूँ, तुम भी सुन सकते हो, और अपना नॉलेज इससे बहुत सही बढ़ेगा। और इसके बाद है CNBC, तो मतलब इम्प्लाइड है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो CNBC तो देखता ही देखता है। फिर यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं आजकल जो बहुत सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंटेंट क्रिएशन बहुत सही देते हैं, वो कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं। तो यूट्यूब में आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, कंटेंट जो अच्छा देता है वो देख सकते हो आप। एक स्पेसिफिकली मैं फॉलो करता हूँ, फिन शॉर्ट्स करके है, उसको आप देख सकते हो। तीसरा है, ये बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखा होता है, और वहाँ पे वो ना अपने ट्रेड्स डालते रहते हैं या मार्केट इंसाइट्स देते रहते हैं, तो वो भी हम फॉलो कर सकते हैं एकदम रियल टाइम में। टेलीग्राम पे भी बहुत लोग होंगे जो अपना ग्रुप बनाते हैं, तो उन ग्रुप में अगर हम इन्वॉल्व हो जाएं तो हमें पता लगता रहेगा कि दूसरे इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं। हमें मोटा मोटा यही जानना होता है कि हमारे साथ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, तभी हम क्या कहते हैं मार्केट को एंटिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट क्या होता है, फ्यूचर पे बेस्ड होता है। मतलब मैं टाटा मोटर्स क्यों खरीदूंगा आज की डेट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल वो मुझे रिटर्न जनरेट करके देगा, कल का प्राइस आज के प्राइस से ज़्यादा होगा, ये मैं एंटिसिपेट करता हूँ। ये मैं कैसे एंटिसिपेट करता हूँ, मेरा तरीका है, मैं क्या कहते हैं मैक्रो एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं माइक्रो एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स लगा रहा हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा। तो ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में, आने वाले कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के फ्रेमवर्क्स होते हैं, किस टाइप की डिस्कशंस करते हैं हम, मतलब एनालिसिस करते हैं एक स्टॉक को पिक करने के लिए। लास्ट में गाइज ये ज़ीरोधा का अकाउंट है, ये मैंने ना यहाँ पे मोटा सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इस लिंक को मैं चैट बॉक्स में डाल दूँगा अभी, इस लिंक, और ये मैं PPT भी ना क्या कहते हैं लोग ग्रुप में डाल दूँगा, यहाँ से आप उठा सकते हो। तो ये जो ये है ना क्या कहते हैं लिंक, इस लिंक से ना डीमैट अकाउंट खुलवाना, तो मैं पर्सनल असिस्टेंस दे दूँगा सबको कि डीमैट अकाउंट में अगर कोई दिक्कत आए तो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट या चेक चाहिए होता है। बस ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हो तो आपका एक दिन में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। और ज़ीरोधा मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ज़ीरोधा पे ट्रेड करता हूँ, और मेरे सारे जितने भी दोस्त वोस्त हैं सब ज़ीरोधा में करते हैं ट्रेड, और ये बहुत ट्रस्टेड है और इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर हम नेक्स्ट बार डिस्कस करेंगे क्या होता है ये मतलब दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर, एक डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट नाम नहीं है तो मतलब सस्ता ही है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं। तो हमारा ये फेसबुक पेज भी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। लास्ट है यही है, फाइनल स्लाइड यही है कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इफ़ यू कांट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग देन यू हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। और ये बंदा है जिसने बोला था, वॉरेन बफेट है, इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है हैथवे बर्कशायर। उसकी एक स्टॉक की कीमत करीब 2.5 करोड़ के आसपास है, 2.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। तो ये गुरु माना जाता है इन्वेस्टर्स में, ये क्या कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर कुछ कह लो। और ये सबसे बड़ा एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कोको कोला के शेयर होल्ड करता है। तो अगर मैंने
दूसरी साइड खोली नहीं खोली, तो मैंने दिखा दिया है मोटा मोटा जो मुझे बोलना था गाइज। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी, वरना आज की मतलब आज के लिए तो इतना ही था। किसी को कुछ पूछना है? चैट। नहीं। हाँ हाय, हाँ मतलब अनम्यूट करके बोल दो ना, ये चैट में तो बहुत सारे हैं ना, कितने मतलब हो जाएगा। वॉट अबाउट NYSE? हाँ, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी एक वो है, क्या कहते हैं, मतलब NYSE सबसे बड़ा है, बट लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना वो या तो नास्डैक को फॉलो करते हैं, DJI को फॉलो करते हैं, S&P 500 को फॉलो करते हैं। NYSE भी को भी लोग फॉलो करते हैं, बस वही मैंने कहा था ना, बायस है। NSE अच्छा है या BSE अच्छा है, मैं उन तीन को ही फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने उन तीन का इनाम दिया है। इट वॉज अ गुड सेशन, थैंक यू। जीरोधा पे डीमैट तो कितने भी हैं, मतलब कितने भी हैं, मतलब समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। ये प्रीति शर्मा, इसको एक्सप्लेन कर दो यार क्या बोला है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि जीरोधा पे मैंने आपने बनाया है, तो मतलब वो अलग अलग साइट अलग अलग बना सकते हाँ मतलब आप जीरोधा पे बना सकते हो, और भी है, अपस्टॉक्स है, फिर IIFL है, नहीं, फिर मतलब डीमेट अकाउंट एक ही होता है, बहुत सारे। हाँ आप क्या कहते हैं कितने भी बना सकते हो, मतलब जीरोधा पे भी आप एक से ज़्यादा बना सकते हो, प्लस आप जीरोधा पे भी बना लो, आप IIFL भी बना लो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये करते हैं, मतलब एक अकाउंट में वो ट्रेडिंग करते हैं, एक अकाउंट में इन्वेस्टिंग करते हैं, ताकि पोर्टफोलियो मिसमैच ना हो, मतलब मिक्स ना हो जाए पोर्टफोलियो। फ्रॉम वेयर वी कैन, क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर वी कैन री वॉच दिस कंटेंट। तो यार मैंने ये कि पूरा डाउनलोड मतलब रिकॉर्ड कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जिसको चाहिए वो रिक्वेस्ट कर देना ग्रुप में, उसको पर्सनली मतलब लिंक भेज दिया जाएगा रिकॉर्डिंग का। अलग अलग बना सकते हैं क्या? अलग अलग, हाँ आप अलग अलग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डीमैट अकाउंट, कैन यू सजेस्ट सम ऑफ द ग्रुप्स टू ज्वाइन? यार ये क्या कहते हैं, तुम जब क्या कहते हैं यूट्यूब में सर्च करोगे ना, कुछ ग्रुप्स में मैं हूँ, जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था तो एक है बाज़ार के पंडित करके है टेलीग्राम पे, अब तो मैंने छोड़ दिया है, तुम ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है वो। और एक है MKJ टॉक्स करके आता है यूट्यूब पे, उसे भी फॉलो कर सकते हो, वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं। पैसा बाज़ार, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, यहाँ पे मैंने कभी इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कभी ट्रेड नहीं करा, तो पैसा बाज़ार के बारे में कोई आइडिया नहीं है। यू विल गेट रिकॉर्ड, कैन यू शेयर द कंटेंट ऑफ हाउ टू बी अपडेटेड? हाँ ये मैं क्या कहते हैं, ये मैंने लिख दिया पूरा यहाँ पे, जो भी वेबसाइट्स मैं देखता हूँ और जो पॉडकास्ट मैं देखता हूँ, ये भी मैं दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपस्टॉक्स एंड ग्रो ऐप कैसा है? देखो अपस्टॉक्स तो डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो ऐप ना अभी अभी जस्ट वो क्या कहते हैं ब्रोकर बना है, पहले वो बस म्यूचुअल फंड्स के लिए प्लेटफॉर्म था, अब वो इक्विटी के लिए बना है, तो उसको टाइम लगेगा जीरोधा के बराबर आने के लिए। जीरोधा इंडिया का बेस्ट ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, तो मैं जीरोधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसी में ही ट्रेड करता हूँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं बता सकता हूँ कि ये दिक्कत हो सकती है। अपस्टॉक्स भी सिमिलर है तो उसमें भी हो जाएगा, बट ग्रो ऐप जो है ये मेरे परव्यू के बाहर है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं हो सकता है कि हेल्प ना कर पाऊँ आपकी, तो बस इसीलिए मैं देखो सब में ना चार्जेस सेम है, चाहे अपस्टॉक में खुला लो, ग्रो में खुला लो, हर कोई ना 300 रुपीज़ लेगा आपका क्या कहते हैं अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आजकल हैं वो सब डिस्काउंट ब्रोकर हैं। ये फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, ये लोग होते हैं। ये लोग क्या कहते हैं एक तो ब्रोकेज भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्लस इन लोगों की सर्विस भी अलग होती है, मतलब ये लोग ना बस प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड करते, ये लोग हमें क्या कहते हैं कॉल्स भी देते हैं, प्लस क्या कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं, प्लस हमारी पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फंड मैनेजर का काम करता है पूरा हमारे लिए, तो इसलिए वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। मिनिमम बैलेंस इज ऑल्सो, नो कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए डीमैट अकाउंट में। हाँ आदेश भी कर रहा है रिप्लाई, सही है गाइस, मेरे हिसाब से हम एक्सीड हो गए हैं, अब शायद ये मैं रिकॉर्डिंग में बंद नहीं कर देता हूँ।